جنوبی پنجاب میں فلور ملز مالکان نے ہڑتال 10 دن کے لیے مؤخر کر دی۔ ہڑتال کے باعث ملتان میں آٹے کا بحران پیدا ہو گیا تھا۔ فلور ملز مالکان کی ہڑتال چکی مالکان کو راس آ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے شہریوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ چکی پر آٹا 100 سے 120 روپے تک کلو فروخت کرنا شروع، جبکہ 2 ہفتے قبل آٹے کی قیمت 80 سے 90 روپے فی کلو تھی۔ چکی مالک کا کہنا ہے کہ گندم 34 روپے فی من خریدی اور بجلی کا لاکھوں روپے کا بل ہے، قیمت کم نہیں کر سکتے۔ پہلے گندم سی سستی، اب گندم سرکار نے مہنگی کر دیا، وپاری بات نہیں سنتا۔ 33-34 روپے من گندم مل رہی ہے، پہلے 80-90 روپے کلو ہم آٹا بیچ، اب گاہک کہتا ہے جی وہی ریٹ پہ آٹا دو، وہی ریٹ پہ ہم آٹا کیسے دیں؟ بجلی سرکار نے بجلی کا ریٹ بھی بڑھا دیا ہے، اب کہاں سے پورا کریں؟ ملازم کہتے ہیں ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، 1000 روپے ڈیلی کی ملازم کو تنخواہ دے رہے ہیں۔ 80-90 روپے کلو آٹا بک رہا تھا تو اب 100 روپے کلو ہو گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ریٹس میں کافی فرق آ گیا، ہمیں بھی مشکل ہے۔ تنخواہوں میں دیکھا جائے کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا، وہی مشکلات ہیں، ہر جگہ ریٹ زیادہ ہیں، ہر چیز کے، بجلی کے اتنے گھروں کے بل آ رہے ہیں۔ یوٹیلٹی سٹورز پر بھی آٹا کئی دنوں سے غائب ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ آٹا بنیادی ضرورت ہے، مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ دستیاب بھی نہیں۔ آٹے کے بنا تو گزارا نہیں ہے، تو ضرورت ہی سب سے پہلے آٹے کی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بہت زیادہ مہنگائی ہے، تو مطلب آٹا اس میں ذرا کم کم، اور گھی چینی میں بھی چینی بھی زیادہ ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے آٹے کی دستیابی اور قیمت کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سہیرہ طارق کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ فلور ملز مالکان کی ہڑتال رنگ دکھانے لگی۔ بہاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر 2 روز سے سپلائی معطل، شہریوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ بہاولپور میں فلور ملز مالکان کی تیسرے روز بھی ہڑتال، یوٹیلیٹی سٹورز پر سپلائی معطل ہونے کے باعث شہریوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کہتے ہیں ہڑتال کے باعث سپلائی نہیں آ رہی، گاہک ہم سے جھگڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی، اب پہلے آتا رہ گیا، 2 دن ہو گئے کہ آٹا نہیں آیا، ملوں والوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، اس لیے آٹا بند ہے۔ بہاولپور کے شہری یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فلور ملز مالکان کی من پسند جگہوں پر سپلائی جاری ہے، صرف غریبوں کا چولہا ٹھنڈا کیا جا رہا ہے۔ جی میں 2 دن سے آ رہا ہوں آٹا لینے، لیکن مل نہیں رہا۔ باہر کو ہوٹلوں پہ بھی مل رہا ہے، ہر جگہ مل رہا ہے، لیکن جو ٹیل کے اسٹور پر نہیں ہے۔ بہاولپور کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے آٹے کی قلت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین سکلین شاہ کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ بجلی آتی نہیں، بھاری بھرکم بلز آ جاتے ہیں۔ رحیم یار خان کے شہریوں نے بجلی مہنگی کرنے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ رحیم یار خان کے شہری بجلی مہنگی ہونے پر پریشان، کہتے ہیں حکمرانوں نے اقتدار میں آنے سے قبل 300 روپے یونٹ فری دینے کا اعلان کیا، لیکن حکومت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے۔ اب ہمیں پروٹیکٹڈ اور صارفین سے نان پروٹیکٹڈ کے چکر میں ڈال دیا۔ بلوں میں خود ساختہ اضافہ کر کے غریب صارفین کو نان پروٹیکٹڈ میں شامل کر دیا۔ 3000 روپے والا بل 15000 روپے تک آنے لگا۔ رہی صحیح کسر لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو ریلیف کی بجائے تکلیف دے رہی ہے۔ حکومت کے جو اخراجات ہیں اس میں تو اربوں روپے اضافہ کر دیا گیا اور بجلی کے بل عوام کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کم از کم 200 یونٹ نہیں 300 یونٹ تک کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ بجلی کے ساتھ ساتھ جو روزمرہ کی ضروریات زندگی ہیں، جس میں جو ہے وہ چینی ہو جاتی ہے، گھی، آٹا، چینی، دالیں، سب چیزیں دن بہ دن ریٹس اپ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کائنڈلی حکومت سے ہماری یہی درخواست ہے کہ بجلی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں پہ بھی نظر ثانی کریں۔ شہریوں نے حکومت سے بجلی سستی کرنے کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ شہری ہو جائے ہوشیار، اب انصاف بھی مہنگا ملے گا۔ پنجاب سرکار نے کورٹ فیس ٹکٹوں میں 500 گنا اضافہ کر دیا۔ اب شہریوں کے لیے انصاف کا حصول بھی سستا نہ رہا۔ کورٹ فیس ٹکٹوں کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ 1 روپے والی کورٹ فیس ٹکٹ 200 جبکہ 2 روپے والی کورٹ فیس ٹکٹ 500 روپے میں ملے گی۔ فنانس ایکٹ 2024 میں کورٹ فیس ٹکٹوں کی قیمتیں شامل کر لی گئیں۔ اپلیکیشن دیتے وقت اور درخواستیں جب کوئی ساحل دے گا، اس ٹائم جو 1 روپے کی پہلے فیس تھی، ٹکٹ تھی، وہ انہوں نے 100 روپے کی کر دی، اور جو 2 روپے کی ٹکٹ تھی اس کو 200 کی بجائے 500 کر دیا۔ اس سے ساحلین عدالتوں میں آتے ہیں، سستے انصاف کے لیے آتے ہیں،
पहले वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इससे मजीद लिटिगेशन की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। दूसरी जानिब वुकला और साइलिन कोर्ट फीस टिकट महंगे होने पर परेशान हैं। वुकला का कहना है कि कोर्ट फीस टिकट्स नकूल फार्म, तलबाना, दावाजात, दरखास्त जमानत और दीगर कानूनी मामलात में इस्तेमाल होते हैं। कीमतें बढ़ने का सारा बोझ साइलिन पर आएगा। एक सफा के नकल फार्म के हसूल के लिए 500 रुपए की टिकट लगाना पड़ेगी। केस में अगर कोई दरखास्त देनी पड़ी तो इस पर भी 500 रुपए की टिकट चिस्पा होगी। जो 1 रुपए की टिकट जहाँ लगती थी 2 रुपए की लगती थी, अब यहाँ 500,000 तक पहुँच गए। क्या हो गया भाई? इनको वुकला को इनका क्या ख्याल है कि उनके पास बहुत दौलत होती है और ये तो सारे खिदमत खल्क करते हुए यहाँ पर आते हैं। ये इंसाफ जो है उनको प्रोवाइड किया जाए और नाइंसाफी जो है उसको खत्म किया जाए। मैं तो ये कहूँगा गुरबा पे जुल्म है, अदल और इंसाफ फ्री होना चाहिए। अदल आपकी दहलीज पर, वो तो बिल्कुल मुखालिफ बात होगी कि आप 2 रुपए की टिकट 500 रुपए की कर दें। वुकला का कहना है कि आईने पाकिस्तान में फौरी और सस्ता इंसाफ घर की दहलीज पर फराम करना वाज़ेह है। कोर्ट फीस टिकटों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। कोर्ट फीस टिकटों की कीमतें बढ़ने से वुकला की फीसें भी बढ़ जाएंगी, जिसका सारा बोझ साइलिन को उठाना पड़ेगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब ने खतरे की घंटी बजा दी। हालिया मानसून बारिशों के बायस पानी की सतह बुलंद, मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। मुजफ्फरगढ़ में मानसून बारिशों के साथ ही दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी की सतह बुलंद होने के साथ ही कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने का खदशा भी पैदा हो गया। मौजा, लालपुर, खानगढ़, बस्ती दुआबा और सिपर के इलाकों में दरियाई कटाव जारी है। पानी की सूरत हाल दरिया में ज्यादा इजाफा हो रहा है पानी का, और दूसरा ये नहर है, नहर में भी बहुत ही ज्यादा इजाफा हो रहा है। तकरीबन हमें तो ये लग रहा है कि इधर सैलाब आने वाला है, नजदीक है, क्योंकि बेटों में सारा पानी आ चुका है। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के करीब लगे सैकड़ों एकड़ आम के बागात को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। 2 दिन में दरियाए चनाब के पुल लाल पीर तक 5 एकड़ अराजी अब तक दरियाबुर्द हो गई है। जिला इंतजामिया का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दरियाई कटाव के बाइस अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत मवेशियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने की तैयारियां कर रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी दरियाई कटाव को रोकने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। हालिया बारिशों के बायस जनूबी तरसील का निज़ाम दरहम भरम हो गया। मुल्तान में मानसून बारिशों के बायस जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी में तरसील का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मंडी में बर वक्त तरसील न होने से सब्जी और फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। मंडी में सब्जियों और फलों की कमी से आढ़ती परेशान। बारिशों ने जो इस वक्त निज़ाम क्या नाम है दरम भरम किया है, उसकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर माल नहीं पहुँच रहे और मंडियाँ खाली हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी इस मार्केट में भी जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है और इस वक्त मार्केट में माल की शॉर्टिंग है, उसकी वजह से रेट कुछ अप हो गए हैं, खुसूसन आम के रेट। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से शहरी और आढ़ती परेशान है। कहते हैं मार्केट कमेटी को पैसे देने के बावजूद मंडी की हालत अबतर है। हमारे नवाज शरीफ ने दावा किया था कि मैं साफ सुथरा पाकिस्तान बनाऊंगी, हमने तो उसको अरदास की है, शायद फेसबुक की वजह से रोजाना लोग नमाज तो पढ़ने जा ही सकते। कल जुम्मा तक कितने लोग गिरे हैं, तो खुदारा हम पे तरस करें। आड़तियों ने इंतजामिया से मंडी की सूरत हाल को बेहतर और सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ ये ज़ुहैर बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में महकमे पंजाब हाईवे गफलत या मुबैना या नाअहली हेड मोहम्मद वाला रोड को दो रोइया करने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 12 किलोमीटर तवील हेड मोहम्मद वाला रोड 1.5 साल बाद भी मुकम्मल न किया जा सका। मुल्तान शहर में जारी तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। हेड मोहम्मद वाला रोड को 2 तरफा करने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। महकमा पंजाब हाईवे अपने दावों को पूरा करने में नाकाम। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 12 किलोमीटर तवील हेड मोहम्मद वाला रोड 1.5 साल बाद भी मुकम्मल न किया जा सका। सड़क पर ट्रैफिक हादसात का भी गैर मामूली इजाफा हो गया। जी हम ये 4 साल से देख रहे हैं, ये रोड ऐसे पड़ा है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इधर, आए दिन जो बड़े मसले मसाइल बनते हैं। कहना चाहता हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द बनवा दें, ये लोगों के लिए बहुत ही परेशानी होती है आने जाने के लिए। शहरी कहते हैं कि हेड मोहम्मद वाला रोड के दरमियान डाली जाने वाली सैवेज लाइनें भी बोसीदा होने लगी। आए रोज यहाँ कोई न कोई गिर जाता है। मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, झंग, रैया और दीगर शहरों की ट्रैफिक इस सड़क से गुजर कर जाती है। 4 साल हो गए हैं इस रोड को ना तकमील पड़ा है। 4 साल से यहाँ पे लोग तंग हैं। अहमदपुर, शर्किया, झंग, तोसा, लैया
अपना बखर, डेरा इस्माइल खां, जितने भी लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं, सब लोग इतने परेशान हैं कि इस रोड की वजह से हर इंसान अपसेट है। जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, यहाँ पे रहने वाले का कारोबार, हर चीज़ मुतासर है। हमारा वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के अंदर ये रोड कंप्लीट ही नहीं हुआ है। सब फंड वगैरह हर चीज़ मुहैया होने के बावजूद ये काम क्यों नहीं हो रहा? ये वज़ीर आला पंजाब इस चीज़ का नोटिस ले। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हेड मोहम्मद वाला रोड का तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। खतीब बादशाही मस्जिद मरकजी चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी का दौरा खानेवाल। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कॉन्फ्रेंस में जिले अमन कमेटी मेंबरान, डिप्टी कमिश्नर की भी शिरकत। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। अमन कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो कि खतीब हैं शाही मस्जिद के, इसके अलावा चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी और चेयरमैन है उलमाए कौंसिल पाकिस्तान के खानेवाल तशरीफ लाए हैं और यहाँ उन्होंने अमन कमेटी और अमायदीन शहर से गुफ्तगू की है। तो मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब मौजूद हैं। जी मौलाना, मुहर्रमुल हराम में आप एक सफ़ीर अमन का सफ़र लेकर चले हैं, खानेवाल पहुँचे हैं, तो क्या पैगाम दें? मैं ये समझता हूँ कि आज इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी जो है उसकी तरफ से और उस प्लेटफार्म से यहाँ पर एक प्रोग्राम ज़िले में रखा गया। मैं मशकूर हूँ यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जनाब अली बुखारी साहब का और इसी तरह DPO जो हमारे इस्माइल खाड़क साहब हैं उनका और इंतज़ामिया का। मैं समझता हूँ कि आज हमने देखा रूट्स को और जहाँ पर मजालिस हो रही हैं उन तमाम जगहों का विजिट किया और हमें बड़ी यूनिटी नज़र आई है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जो कुरान है वो ये कहता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। तो आज उस यूनिटी को मैंने इस खानेवाल में देखा है और मैं ये समझता हूँ कि 6 दिन हमारे बड़े अच्छे गुजरे हैं। इंशाअल्लाह उलमा ने ये इस चीज़ का इजहार किया है कि जैसे हमारे ये 6 दिन गुजरे हैं, आगे 4 दिन भी हम इसी तरह गुजारेंगे ताकि मुल्क के अंदर वहदत पैदा हो, मुल्क के अंदर यूनिटी पैदा हो और मुल्क के अंदर इत्तेहाद व वहदत का एक जो मुजाहिरा है वो, अब ये देखें ना, सब मसालिक के लोग यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ से एक अच्छा पैगाम गया है। मैं समझता हूँ कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करना चाहिए और हज़रात सहाबाओं, हज़रात अहले बैत अतहारों, उनकी इज्जत तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। बड़ी अच्छी बात की है कि अपने मसलक को छोड़ो ना, किसी के मसलक को छेड़ो ना। मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का शुक्रगुजार हूँ, मोहतरमा का, कि उनकी हिदायत पर ये सब विजिट हुए पूरे पंजाब के अंदर। और अब मैं देख रहा हूँ उनकी तरफ से शरबत की सबीलें भी लगाई गई हैं, पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं और आज हमने विजिट में खानेवाल में देखा कि उनके लिए खाने और लंगर का इंतज़ाम के लिए भी काम हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आज लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है। अल्लाह ताला इस यूनिटी को कायम रखे। ये यूनिटी है तो ये मुल्क है, यूनिटी है तो इस्तेहकाम है। अल्लाह ताला हम सबको मिलकर आगे चलने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल, सफ़ीर अमन का यही कहना है कि अमन का पैगाम जो है पूरे मुल्क में फैला रहे हैं और इंशाल्लाह साल भर जो है वो अमन। शुक्रिया नदीम मुगल।